The next gland is pineal gland. The pineal gland is located on the dorsal side of the forebrain. So जो pineal gland है इसकी लोकेशन कहाँ पे है? जो forebrain है उसके dorsal side में. And pineal gland secretes a hormone called melatonin. Melatonin plays a very important role in the regulation of a 24-hour diurnal rhythm of our body. For example, it helps in maintaining the normal rhythms of sleep-wake cycle, body temperature. सो बेसिकली जो मेलेटोनिन हार्मोन जो पीनियल ग्लैंड सीक्रेट कर रही है, ये हमारी बॉडी का जो एक रिदम होता है, जैसे कि जब हम रात को सोने जाते हैं या फिर दिन में जब हम अपने दूसरी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, तो जो स्लीप और वेक साइकिल है उसको मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है. और इन एडिशन मेलेटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, द मेंस्ट्रुएशन साइकिल एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटीज. तो इस तरह की जो कुछ और डिफरेंट फंक्शंस भी हैं वो भी जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो करता है. Which is very important for our exam point of view. So the thyroid gland is composed of two lobes which are located on either side of the trachea. Both the lobes are interconnected with a thin flap of connective tissue called isthmus. This one is the thyroid gland. It has two lobes. These are the two lobes, and these two lobes are interconnected with isthmus. This is trachea. The thyroid gland is composed of follicles or stromal tissue. So जो thyroid gland है इसमें there are several follicles which secretes thyroxine hormone. Each thyroid follicle is composed of a follicular cells. So thyroid gland is made up of follicles and each follicle is composed of follicular cells. So एक follicle जो है वो बहुत सारे follicular cells से बनती है and there is a cavity in these follicles. These follicular cells synthesize two hormones. The first one is the tetraiodothyronine or thyroxine T4 and the second one is the T3 that is triiodothyronine. So ये जो दो हार्मोन है T3 and T4 ये follicular cells secrete करती हैं. Iodine is essential for the normal rate of hormone synthesis in the thyroid. Iodine जो है वो basically जो थायराइड ग्लैंड है उसमें जो हार्मोन बन रहे हैं T3 एंड T4 उनके सिंथेसिस के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट्स इन हाइपोथायराइडिज्म एंड एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड गॉइटर. जैसे कि अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी हो जाती है, बेसिकली जो है जो सॉल्ट होता है उसमें दे आर आयोडीनेटेड सॉल्ट्स. तो अगर आयोडीन अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, द required amount of iodine is not present in salt, so it might lead to hypothyroidism which cause enlargement of the thyroid gland that is commonly called goiter. Hypothyroidism during pregnancy causes defective development and maturation of growing baby leading to stunted growth. और जो hypothyroidism है अगर during pregnancy जो है वो डिफेक्टिव जो डेवलपमेंट होता है उसको प्रमोट करता है. जैसे जो ग्रोइंग बेबी है उसकी जो ग्रोथ है वो हैम्पर हो जाएगी एंड दैट इज़ कॉल्ड क्रेटिनिज्म. और जो मेंटल रिटार्डेशन है, जो मेंटल ग्रोथ है, इट ऑल्सो हैम्पर्ड. लो इंटेलिजेंस क्वोशेंट, डेफिनेटली अगर मेंटल रिटार्डेशन वाली सिचुएशन है तो जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट है वो भी कम होगा. एबनॉर्मल स्किन, डेफ एंड म्यूटिज्म. इन अडल्ट वुमेन हाइपोथायराइडिज्म मे कॉज मेंस्ट्रुअल cycle to become irregular. So due to hypothyroidism जो menstrual cycle है it also got disturbed. Due to cancer of the thyroid gland or due to development of nodules of the thyroid gland, the rate of synthesis and secretion of thyroid hormone is increased to abnormal high levels, leading to a condition called hyperthyroidism which adversely affect the body physiology. So in case of cancer जो thyroid gland है उसमें जो nodules हैं या follicles हैं अगर वो ज़्यादा अमाउंट सीक्रेट करते हैं थायराइड हार्मोन का तो इट विल लीड टू हाइपरथायराइडिज्म, और जिससे कि जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी जो मेंटेन कर रही है थायराइड ग्लैंड वो डिस्टर्ब हो जाता है. एक्सॉप्थेल्मिक गॉइटर इज अ फॉर्म ऑफ हाइपोथायराइडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल्स, इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड वेट लॉस, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज.
सो हाइपरथायराइडिज्म की एक और कंडीशन है दैट इज एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, या फिर इसे ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं। इस केस में क्या है, जो थायराइड ग्लैंड है इट वुड एनलार्ज्ड, आई बॉल्स जो है वो प्रोट्रूडेड होंगी लाइक दे आर कमिंग आउट ऑफ द आई सॉकेट, और जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, वेट लॉस होगा। सो दीज आर द कंडीशन ऑफ एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर और ग्रेव्स डिजीज। थायराइड हार्मोन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीज हार्मोन्स ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड fats. Maintenance of water and electrolyte balance is also influenced by thyroid hormones. Thyroid gland also secrete protein hormone called thyrocalcitonin, which regulates the blood calcium level. The next one is the parathyroid gland. In humans, 4 parathyroid glands are present on the back side of the thyroid gland, one pair each in 2 lobes of thyroid gland. So इन दिस डायग्राम जहाँ पे हमने थायराइड ग्लैंड देखा था, सो ये जो है ये फ्रंट व्यू है, और अगर बैक साइड में हम देखेंगे तो दीज आर द 4 पैराथायराइड ग्लैंड। सो बिहाइंड थायराइड ग्लैंड द पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। सो दिस वन इज द डॉर्सल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। सो द पैराथायराइड ग्लैंड सीक्रेट अ पेप्टाइड हार्मोन called parathyroid hormone. The secretion of parathyroid hormone is regulated by the circulating levels of calcium ions. So जो parathyroid hormone है basically it regulates the calcium level. So अगर calcium ions का जो concentration वो कम ज़्यादा होगा तो it would increase secretion of increase or decrease secretion of parathyroid hormone. Parathyroid hormone increases the calcium levels in the blood. That is very important point, so much asked in the exams. Parathyroid hormone acts on bones and stimulates the process of bone resorption, that is dissolution or demineralization. So जो पैराथायराइड हार्मोन है वो बोन्स पे एक्ट करता है और जो बोन रिजॉर्प्शन है उसको इंक्रीज करता है, जिससे कि जो कैल्शियम है जो है वो डिसोल्यूट या डीमिनरलाइज्ड, जो बोन्स है वो डीमिनरलाइज या डिसोल्यूट होती हैं, जिससे कि कैल्शियम जो है वो बोन से ब्लड में इंक्रीज होता है, ब्लड की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। पैराथायराइड हार्मोन ऑल्सो स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। सो जो पैराथायराइड हार्मोन है वो रीनल ट्यूब्यूल्स और जो डाइजेस्टेड फूड है वहाँ से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके ब्लड या प्लाज्मा में जो है वो कैल्शियम का अमाउंट इंक्रीज करता है। सो बेसिकली जो पैराथायराइड हार्मोन है it regulates the calcium level in plasma and it increases the calcium level in plasma. It increases the blood calcium levels. Along with TCT, it also play a significant role in calcium balance in the body.